real time applications of data structures, right? Stacks जो आपके last in first out application है, which is basically used by every compiler internally to save the return memory address whenever you call a function, right? जब आप function को call करते हो तो क्या होता है, the control will shift to the other part of the program. So after the execution of that particular function, it has to return to the statement. So there is a need to save the memory address, return address, right? Whenever you call a function, before calling any function, we can use stack to save the return address. Similarly, in case of recursion, when you call a function again and again multiple times, so you need to save the return address. Similarly, queues का जो important role है वो आपका operating system में use हो रहा है. सबसे ज़्यादा जो queue का role है, that is the operating system. What is operating system? It is an interface between user and computer hardware. जो रिस्पॉन्सिबल है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रन ऑल योर एप्लीकेशंस, राइट? विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट रन योर एप्लीकेशंस, राइट? सो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो भी मल्टीपल प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, यू हैव मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एट वन टाइम, so how they will be executed by maintaining the queue. Similarly, Harsh has discussed about the printing job. Whenever you have multiple printing requests at the same time, how it is handled? It is handled by maintaining the queue, right? So operating system keep tracks of all the processes that need CPU time. They are used for sorting things, optimizing the complexity and finding shortest path. सो एरेज में आपका जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है वो हम यूज करते हैं एरेज में. इट इज यूज्ड इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन वेयर यू नीड टू गैदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एट वन प्लेस to store all the book titles in a library management system, because an array is a collection of data which are of homogeneous types. So same type के आपने उनको store करना है और उसके लिए आप array use करोगे to store an image as a bitmap. Image कैसे store होती है आपकी memory में in terms of pixels, right? तो उसके image को as a pixels की form में हमने array की form में, here we will use two dimensional array. This is rows and columns. Similarly, array can be used for sorting elements. We can perform matrix operation. It can be used in CPU scheduling for representation of stack, queues, trees, and here you can also add your graph. Basically, array is a one data structure through which we can represent our stack, our queue, our tree, as well as our graph, right? So these are some of the applications. Similarly, stack is used for evaluation of arithmetic expression which is given in postfix. What is postfix? In which we will write the operator symbol after the operands, right? So why do we evaluate postfix? Because it is faster, right? To implement back functionality in an internet browser, whenever you use a browser to serve something, and how do you go to the back button? With the help of स्टैक में आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट है. जैसे आपने प्रीवियस पे जाना है तो वो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट होगा वो आपका प्रीवियस पे होगा. एंड सिमिलरली यू कैन गो टू फर्दर बैकवर्ड, राइट, टू स्टोर अनडू रीडू ऑपरेशन. सिमिलरली वर्ड प्रोसेसर में आप अनडू रीडू कर रहे हो तो वो उसके लिए हम स्टैक ही यूज कर रहे हैं इसके अंदर बेसिकली. सिमिलरली फॉर बैलेंसिंग पैरेंथेसिस, जैसे आपका कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स कनेक्टेड बाय ऑपरेंड्स कनेक्टेड बाय ऑपरेटर्स और पैरेंथेसिस होती हैं. तो उसमें एक एप्लीकेशन है इसकी, हम उसको बैलेंस पैरेंथेसिस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं. किसी भी एक्सप्रेशन में आपके इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस होती है तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि एल्गोरिदम के थ्रू, वहां पे भी इसका यूज होता है. सिमिलरली फंक्शन कॉल रिकर्शन में यूज होता है. बैक ट्रैकिंग एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम काफी सारे एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करते हैं. डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, उसमें आपका स्टैक का यूज होता है. सिमिलरली आपका देयर आर टू टाइप ऑफ सर्चिंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम यूज करते हैं इनको, डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेड्थ फर्स्ट. आपका स्टैक डेप्थ फर्स्ट में यूज होता है और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्चिंग के लिए हम क्यूज का यूज करते हैं. सिमिलरली टू फाइंड द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, हमें किसी भी नंबर को किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, वहां पे भी आपका स्टैक का यूज होता है. एंड क्यू का आपका प्रिंटर में यूज हो रहा है to implement printers spooler so that job can be printed in the order of their arrival. Why do we need to spool? Because due to the speed mismatch between
your input output devices and CPU, right? So आपकी जो input device है, output device है, वो slow है as compared to CPU. तो CPU faster है प्रोसेसिंग में, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, एक स्पूलर यूज करना पड़ता है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। स्पूलर में क्या होता है, आपका डिस्क से जो डेटा होता है वो आपका इनपुट डिवाइस से जो डेटा होगा वो डिस्क में स्टोर कर लेते हैं हम, स्पीड को मिसमैच को ओवरकम करने के लिए, ताकि वो फास्टर ऑपरेशन हो। तो उसमें हम स्पूलिंग का जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो भी दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्यूज to store customer order information in drive-in burger place. Customer keep on coming and they have to get their correct food at the payment food collection window, right? इसमें क्यू की फर्दर हम टाइप पढ़ेंगे, प्रायोरिटी क्यू होती है, राइट? प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, इन विच यू प्रोसेस the items on the basis of some priorities, right? Instead of serving items in the order of their arrival, in priority queue will serve the items on the basis of their priority. The most important items will be served first. इसका जो एग्जांपल है दैट विल बी यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, राइट? जो क्रिटिकल पेशेंट जो होंगे वो आपके पहले अटेंड होते हैं rather than in the arrival, right? So it is also used for inter-process communication, right? When multiple process are interacting, synchronized, communicate with each other, तो उनको आपस में कैसे communicate करना है, उसमें क्यू का help होता है. Similarly used in operating system where process need memory to be allocated in the order of their arrival, right? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका जो यूज होगा, प्रोसेसर मैनेजमेंट में तो है, सीपीयू मैनेजमेंट कि सीपीयू को किस प्रोसेस को पहले एलोकेट करना है। सिमिलरली आपकी जो मेमोरी होगी, आपके पास लिमिटेड, यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी, तो आपकी कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है दैट शुड बी प्रेजेंट इन दी मेमोरी। तो अब आपके पास मेमोरी लिमिटेड है, तो हमने किस प्रोसेस को पहले मेमोरी एलोकेट करनी है, ये क्यू के ऑर्डर में ही होगा, फीफो ऑर्डर में, जो पहले आई है उसको पहले हम मेमोरी एलोकेट करेंगे सो दैट वो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके अपनी मेमोरी फ्री हो जाएगी, सो दैट दैट मेमोरी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर सम अदर पर्पस, राइट? सिमिलरली क्लाइंट सर्वर मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं हम, उसमें यूज होता है, ब्रेडफर्स्ट सर्चिंग में यूज होगा, फॉर मैसेज इनकोडिंग यूजिंग रिपीटेड कीज। एनकोडिंग हम इंक्रिप्शन यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए, जब भी हम नेटवर्क पे कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं उसके लिए हमें मैसेज को एनकोड करना पड़ता है, इंक्रिप्ट करना पड़ता है, वहां पे भी आपका क्यूज का यूज होगा। एंड लिंक लिस्ट आपका जो यूज होगा दैट इज यूज टू स्टोर सोशल नेटवर्क फीड्स। You don't know the size and thing may need to be dynamically added. सोशल नेटवर्क फीड्स, जब आप सोशल नेटवर्क पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें आपको डायनेमिक रखना पड़ता है। यू डोंट नो हाउ मेनी, उसका क्या एडवांस में कितना क्या साइज होगा, उसमें क्या होगा, इसमें हम ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली लिंक लिस्ट का जो यूज है दैट इज यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक क्यूज एज वेल एज ट्रीज एंड ग्राफ। तो एरे को भी हम इन सब की रिप्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली ग्राफ में भी दो मेथड है, हम ग्राफ को एज अ एरे और एज अ ट्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी लिंक लिस्ट। तो जब हम ग्राफ को एज अ एरे रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड एडजेंसी रिप्रेजेंटेशन, एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली जब हम लिंक लिस्ट के थ्रू भी हम उनके वर्टिसेस को स्टोर करवा सकते हैं, राइट? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, अब यहाँ पे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है, जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं तो वहां पे हम लिंक लिस्ट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एरेज। मेंटेनिंग डायरेक्टरी ऑफ नेम्स, राइट? परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन लॉन्ग इंटीजर्स, मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्टोरिंग कांस्टेंट इन द नोड ऑफ लिंक लिस्ट। ये हम इसकी एप्लीकेशन डिटेल, पॉलिनोमियल इक्वेशन को लिंक लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब उसमें ए बी और सी क्या है, आपके कांस्टेंट है, और एक्स, ये एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, इसका पावर होगी, एक्सपोनेंट होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में क्या होता है, यू हैव उसमें एक्सपोनेंट होता है और क्या होता है, उसका जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है? ए बी एंड सी आर कोफिशिएंट, एंड जो पावर हम ले रहे हैं 2 1 और 0 वो आपके एक्सपोनेंट हो गए। तो हम लिंक लिस्ट में क्या करेंगे, एक नोड को मल्टीपल उसमें डिवाइड कर देंगे। एक फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे,
उसका कोफिशिएंट स्टोर कर लेते हैं, सेकंड में उसका एक्सपोनेंट, एंड थर्ड में हम उसका लिंक, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो इस तरह से हम लिंक लिस्ट में की हेल्प से पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली रिप्रेजेंटिंग स्पार्स मैट्रिक्स। व्हाट आर स्पार्स मैट्रिक्स? क्या होती हैं? सुना होगा आपने नाम? यस, स्पार्स। व्हाट आर स्पार्स मैट्रिक्स? मैम डायगनल जिसमें मैम नॉन डायगनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं। यस, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एंट्री होगी आपकी, दैट इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, स्पार्स मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो अगर आपके पास सपोज 10 by 10 की मैट्रिक्स है, ठीक है, आएगी, आपका स्पेस वेस्टेज कम होगी। ठीक है, तो हम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। क्लियर नहीं आ रही बच्चे? नो मैम, बीच में बहुत चली गई थी आपकी आवाज। बताते रहा करो बच्चे, बीच में सिग्नल प्रॉब्लम लग रही है आई थिंक। शिफ्ट करती हूँ, दूसरा नेटवर्क पे ट्राई करती हूँ, 1 मिनट को वेट करो। ओके मैम, थैंक यू मैम। डिस्टरबेंस है अभी भी? क्लियर ओ है मैम कि अब अभी ठीक है। अब तो मैम चलो ठीक आ बीच रही में है। बता देना अगर। चलो ठीक है। यस मैम। तो और क्या एप्लीकेशन है इसका? इमेज व्यूअर में भी यूज होता है। इमेज व्यूअर जैसे हर्ष ने भी डिस्कस किया था, आप इमेज प्रीवियस और नेक्स्ट इमेजेस किस तरह से आपस में लिंक्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डबली लिंक लिस्ट यूज करोगे, जिससे आप प्रीवियस पे भी जा सकते हो और नेक्स्ट इमेज पे भी जा सकते हो। सिमिलरली वेब ब्राउजर में भी आपके जो प्रीवियस और नेक्स्ट पेजेस होते हैं, जो हम हाइपर लिंक की हेल्प से लिंक कर सकते हैं। एंड म्यूजिक प्लेयर में जो आपके सॉन्ग्स हैं वो भी आपस में लिंक लिस्ट की फॉर्म में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, सिमिलरली ट्रीज, ट्रीज में आपका देखो कहाँ कहाँ ट्रीज की भी काफी एप्लीकेशंस हैं। इसको हम मार्कअप लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, एक्सएमएल लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं। हरारिकल डेटा को स्टोर करता है, बेसिकली आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, आपका सिस्टम के अंदर भी आप जो अपने रिकॉर्ड स्टोर करते हो वो सारे फोल्डर की फॉर्म में हरारिकली ऑर्गेनाइज होते हैं, ट्री की फॉर्म में होते हैं। इसमें आपका अलग अलग टाइप के ट्रीज हैं। वन ट्री इज बाइनरी सर्च ट्री। एक बाइनरी ट्री होता है, एक बाइनरी सर्च ट्री, दोनों डिफरेंट है। बाइनरी ट्री क्या होता है? इट्स अ सिंपल ट्री विद 2 नोड्स। और बाइनरी सर्च ट्री में आपके पास कुछ कंडीशन होती है कि लेफ्ट नोड की जो वैल्यू होगी वो रूट से लेस होती है और राइट वाले की वैल्यू रूट से ग्रेटर होती है। तो उसका जो हम फास्टर सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन में यूज कर सकते हैं। It allows also allow finding closest item. Similarly आपका एक ट्री में एग्जांपल है हीप। हीप, इसमें हीप बेसिकली हम हीप सॉर्ट इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो हीप को हम एरे की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहां उसको रिप्रेजेंट करने में भी इसका यूज होता है। सिमिलरली बी ट्रीज होते हैं, बी प्लस ट्रीज होते हैं, वो आपके डेटाबेस में इंडेक्सिंग के लिए हम यूज करते हैं। सिंटेक्स ट्री होते हैं, वो आपके कंपाइलर्स में यूज होते हैं। सफिक्स ट्री, वो आपके क्विक पैटर्न सर्चिंग इन अ फिक्स टेक्स्ट। इसमें एक टेक्स्ट में अगर हम कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च कर रहे हैं तो उसमें यूज होता है इसका। सिमिलरली स्पैनिंग ट्रीज होते हैं, छोटे स्पार ट्रीज हैं, वो राउटर्स और ब्रिजेस में यूज होते हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स में। राउटर्स क्या होते हैं? जो आपके रूट को फाइंड करते हैं कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे आपको कुछ कुछ पैकेट्स फॉरवर्ड करने हैं, कुछ मैसेज फॉरवर्ड करना है, तो वो उसमें ट्रीज यूज होंगे। एज अ वर्कफ्लो फॉर कंपोस्टिंग डिजिटल इमेजेस फॉर विजुअल इफेक्ट, टू स्टोर जीनियोलॉजी इंफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। हम मेडिकल फील्ड में भी इसका काफी ज्यादा यूज है ट्रीज का। टू स्टोर पॉसिबल मूव्स इन अ चेस गेम।
अब कोई भी गेम में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका कोई भी गेम ले लो, 8 पजल ले लो, चेस गेम ले लो, कोई भी गेम होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करने में के लिए ट्री का करते हैं। सबसे पहले एक इनिशियल स्टेज होती है कि चेस गेम में आपका रूट क्या होगा, आपका एक सिंपल चेस